viewers, those who have shown their love towards me and my video in the previous video. And today we are going to discuss a new chapter today, which is from Invitation to English 2, Mystery of the Missing Cave, which is written by Manoj Das. Manoj Das द्वारा लिखा जाता Mystery of the Missing Cave we are going to study today, which is there in your syllabus, and it will help you. The knowledge which I am sharing with you all is not that much difficult to understand, and if you watch my video full, or if you watch it properly, then we will come to know that how much easier it is. So let's start the topic. Introducing to the author, ମୁଁ authorଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି Mystery of the Missing Cave ର. So Manoj Das, who was born in the year 1934 on 27th February, he is an Indian author who writes in both Odia and English. Odia और English writer भाବରେ परिचित से. In 2000 Manoj Das was awarded with Saraswati Samman से पुरस्कार पाइथिले 2000 मसीह. He was awarded Padma Shri in 2001. Actually I am telling you the achievement of the writer, which is not mentioned here in the topic, जोटा टॉपिक लिखा जाए, but it is important to know about the writer, and he is from Odisha. आमे जानिछु 1934 मसीहा 27 फेब्रुआरी जन्मग्रहण करथिले, and he was awarded Padma Shri in 2001. 2001 से पद्म श्री सम्मान पाइथिले, and it was the second it is the second बा फोर्थ हाईएस्ट आम कहीपर सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. भारतर चतुर्थ बड़ सम्मान एटा थिला. देन इन द ईयर 2020 he got or he was awarded Padma Bhushan, जोटा को थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोलिक कह जाउची, and he was awarded for this he was awarded Padma Shri, Padma Bhushan and Saraswati Samman due to his contribution to the field of literature and education. कला और साहित्य को तांकर अवदान पाई से पुरस्कार पाइथिले. So let me come to the topic which is here. Actually, what kind of topic it is? It is kind of comedy which is written by the writer Manoj Das. The comedy is here, so it will create humor among us if we start reading and studying. आमे पढ़िबा जदि आरंभ करिबा, we will come to know about the story. Actually, it is a short story and which is full of comedy and fun and comedy. आमे कोई पर केवल हास्य रसात्मक धर्मी लेख माने आमे कोई परिबा गल्प गुटे, and it would help you if you start studying. पढ़िबा स्टार्ट करले हमको एटा खुशी देबो गुटे kind of comedy, but we will have to watch till the end. We will have to study till the end, which is mentioned here by the writer Manoj Das, a famous writer. तांकर द्वारा लिखा जाइतो होची गुटे क्षुद्र गल्प. सो आमे जानचु जे the how when we laugh, how it feels, how we feel. के जेतेबेले हस कथा आसे आमे कोन केमति केभली फील करू. So it is full of suspense. We will come to know if we come to the end of the topic. आमे शेष को आसला बेल को जानिबा कोन थिला story, but let me start with the first unit. It is certainly not my motive in recounting this episode of 2 decades ago raise a laugh at the expense of Sri Maharana Babu Biroki sir. Maharana or Babu Biroki sir. So let me tell you about the characters. Character दी जण होचंदी एठी Maharana and Sri Maharana and Babu Biroki sir. So there are two characters. Who are they? Then the Honorable Minister of Fisheries and Fine Arts of my state. On the contrary, the meaning of contrary कहले आमे जानि परिबा प्रतिकूल परिस्थिति बा जोटा सपोर्ट कर नथे गोटे अनुकूल नथिबा परिस्थिति. I wish my friends and readers to share the sympathy I have secretly nurtured in my heart for these two men over all these years. So in his childhood days, when the writer was at his childhood days, he witnessed an incident. Actually it was happening in his own village. तांकर मैटरनल अंकल गाँव में घटी गोटे घटना संपर्क से आलोकपात करिसेंती, एंड हाउ इट मेड हिम फन वा ह्यूमरियस सेटा आमे जानिबा. बिफोर दैट ही हैज मेंशनड हियर टू कैरेक्टर्स, श्री महाराणा और बाबू बिरोकी सर. सो बाबू बिरोकी सर होचंदी किए द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड फाइन आर्ट्स ऑफ माय स्टेट. ओडिशार जड़े माने मत्स्य मंत्री बा आमे जो कहूँ फिशरीज एंड फाइन आर्ट्स मत्स्य और कला रो मंत्री से थिले. On the contrary, I wish my friends and readers to share the sympathy I have secretly nurtured. जोटा जंत्रणा दूला भितरे
बा उबुटुबु होता से विषय से आलोकपात कर फॉर दोज टू पर्सन से माने किए महाराणा बाबू थे कौन से अंचल लोक आउ बाबू वीरकिशोर थे मंत्री सो द स्टोरी इज कम्प्लीटली बेस्ड ओपन दोज टू पर्टिकुलर पर्सन्स ए दुजन पर्यवेसित एंड द पर्सन मनोज दास विटनेस द इनसीडेंट से देखी घटना को फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ही इज एक्सप्लेनिंग हियर विथ ऑल ऑफ अस आम सहित से एक्सपीरियंस शेयर कर से घटनाटी थिला बिफोर दैट वी विल कम टू नो अबाउट दोज टू पर्सन्स मिस्टर महाराणा एंड बाबू वीरकिशोर थे मंत्री जड़े मत्स्य विभाग मंत्री आ फाइन आर्ट्स मंत्री थे एंड ऑन द अदर हैंड मिस्टर महाराणा वाज ए पैट्रियोटिक से गोटे देशात्मक बोधक व्यक्ति देशात्मक गोटे थी माने ही इज मेड फॉर नेशन लाइक दैट आम कहीपर से भाया गोटे लोक सी महाराणा was a well-to-do man, गोटे भल फैमिली रू बिलोंग करते. He had the only पक्का house in an area of 20 villages and he had the only पक्का house in an area of 20 villages. से आखंड मंडल रे बा 20 गाँव रे केवल तांकर ही पक्का घर था. The पक्का word is an ओडिया word. We should remember it properly. There is no such meaning of पक्का. पक्का कहले छात घर जोड़ा थिला गोटे 20 गाँव रे सांकर मुख्य घर थिला सेटा. White washed on the eve of Indian achieving independence. जेते बळे माने भारत स्वाधीनता टाइम रे जो स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेशन होगापी जाऊला सो ही हैड व्हाइट वॉस्ट हिज हाउस ऑन द ईव ऑफ इंडियन अचीविंग इंडिपेंडेंस. द हाउस सोन एज सॉर्ट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. इट वाज काइंड ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड दैट हाउस I told you it was built by Mr. Maharana and it was kind of attracting place at that time, but during that time actually say somewhere and people passing by they used to watch that house which was built by Sri Maharana in the village. जो तांकर गाँव में तैयारी थी से घर को समस्ते आखि पकाउले बा देखुले एंड इट वाज बिल्ट लाइक दैट से भाया ये बना जाइथिला आउ इट वाज लुकिंग टू मच अट्रैक्टिव एंड इट यूज्ड टू अट्रैक्ट पीपल दोज हु वर पासिंग बाय. जो माने से जगह दे जाउथिले समस्ते से घरटा को आखि पकाउले. इट वाज दैट काइंड ऑफ अट्रैक्टिव. सो इट इज मेंशन्ड हियर सोन एज सॉर्ट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. गोटे टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह हो जाता से घर फॉर द फोक्स बोले लोक मानी ऑफ द नियर बाय विलेज लोक से पाख आखर लोक मानी. दे स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट इट व्हेन एवर दे पास्ड बाय. दोज हु वर पासिंग बाय दैट प्लेस दे यूज्ड टू वॉच दैट हाउस व्हिच वाज मेड बाय और व्हिच वाज बिल्ट बाय मिस्टर महाराणा इन द विलेज. से घर तैयारी से गाँव में तैयारी कर घर को समस्त देखुले आखपाखर लोक मैंने आ से घर दे जाऊा प्रत्येक व्यक्ति बिकॉज इट वाज दैट काइंड ऑफ अट्रैक्ट. For none could overlook the symbolism in this operation that had been carried out after nearly half a century. So the labor overlooked the symbolism. It was kind of symbolism about गोटे प्रतीक होकर रही जाइथिला after nearly half a century. पाखापाखि 50 शताब्दी धरिक आम 50 वर्ष धरिक. Sri Maharana had a considerable reputation. We are moving the next page. Sri Maharana had a considerable reputation as a conscientious and generous man. He was an exemplary host with 2 ponds full of choice fish and a number of well cared for cows. He was a happy villager. So he was a rich person. On the other hand से गोटे धनिक श्रेणी व्यक्ति थे. He was a host जे अतिथि सत्कार करुले आम कह गोटे बहुत बढ़िया सत्कारक भाव से परिचित थे. एंड ही हैड 2 ponds with 2 ponds full of choice fish and number of well cared for cows. काउज कहले गाई एवं माछ दुईटा तांकर पोखरी थिला दुई जन को माने ही हैड चॉइसेस. ही वाज ए हैप्पी विलेजर. सी महाराणा हैड ए कंसिडरेबल रेपुटेशन. तांकर गोटे रेपो थिला से बहुत जनप्रिय लोक थिले और लोक तांको मानुथिले एज ए लीडर इन दैट लोकालिटी एज कंसेंटियस बोले विवेकी बा हृदयवान लोक. जेनेरस कहले हृदयवान लोक. मेन he was an exemplary गोटे होस्ट थिले माने he was kind of example for the society as a human as a host. गोटे सत्कारक अतिथि सत्कारक भाव में से गोटे एग्जाम्पल होकर थे इन दैट लोकालिटी से लोकालिटी. सो ही वाज ए हैप्पी विलेजर. ऑन द अदर हैंड वी कैन से बिकॉज ही वाज रिच एंड ही हैड एनफ मनी एंड ही हैड अ गुड हाउस. मैम कहीपर ही हैड अ बिग हाउस. ही हैड ए पक्का हाउस गोटे घर भल घर थिला. एंड एवरीबडी यूज टू वॉच दैट हाउस दोज हु वर पासिंग बाय. जो मैंने से रास्ता दी जाते से घर को समस्त देखुले. इन दिस वे ही यूज टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी एज ए ह्यूमन एज ए गुड ह्यूमन एज ए कंसेंटियस एंड जेनरस मैन. एभली लोक भाव से निजको गढ़ी तोड़ी थे. सो बट व्हाट वाज द हिडन एजेंडा इन द माइंड ऑफ द पर्सन मिस्टर महाराणा. तांको भीतर हिडन एजेंडा कौन थिला. ही ट्राइड टू गेट क्लोजर टू द मिनिस्टर एंड ही वांटेड टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स. वांटेड टू बी ए लीडर
एक कथा कहुई से गोटे हिडन एजेंडा थिला तांकर एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड टू होस्ट ए प्रोग्राम टू वेलकम द मिनिस्टर को वेलकम करने से कौन करते गोटे आरंभ करते गोटे जिनस हूँ कौन तांकर गोटे सेरिमनी से उत्सव गोटे होस्ट करते सो इन दिस वे ही मेड अ प्लान टू वेलकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड दैट इज व्हाई ही made all the arrangements for him. But what was the hidden agenda? तांका भीतर hidden agenda कौन था? He wanted to enter into politics through that leader or that minister. तांको through रे से leader है पाइन चाहूँतले बा politics भीतर पूरी पाइन चाहूँतले. So we are moving the next paragraph. Came independence as well as is well known, the ancient land of India has had 4 major castes from time immemorial. We can write few meanings over here. आमे किछि जिनस लिखिदेवा कि डिफरेंट मीनिंग इमेमोरियल कहले आमे कहवा समथिंग दैट ओल्ड जोटा पुराना हो जाए माने आग कालू देर वर 4 कैस्ट्स 4 मेजर कैस्ट्स आमर 4टा कैस्ट थिला बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस भारत स्वाधीनता पाइबा परे वन मोर न्यू कैस्ट एमर्ज्ड गोटे नुआ कैस्ट एमर्ज है एक कही माने बढ़िला एक बट ड्यूरिंग द days immediately preceding independence, a new caste was emerging all over the country of patriots and name of that caste was patriots. पूर्व आम जानी सीटी रहिले rich middle class poor and one more caste was there, but after independence there was another caste which was known as patriots. देशात्मक प्रेमी बा देश प्रेमी बोलिक किसी गोटे गोष्ठी बाहर. सो फ्रॉम दैट गोष्ठी आमे कहि परिबा द पर्सन मिस्टर महाराणा बाबू वाज वन ऑफ देम. से पेट्रियोट्स मान मध्य मिस्टर महाराणा अन्यतम थिले. सो द 15th of August 1947 gave a big boost to their growth. आर अधिका गोष्ठी बढ़ी जाते 1947 मसीहा अगस्ट 15 पर आर गोष्ठी सब बढ़ी जाते जो मैंने पेट्रियोट गोष्ठी. इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज बिसाइड्स द ब्राह्मण क्षत्रियस वैश्यस एंड शूद्रस देयर आर 4 कास्ट जोटा को आम कहूँ Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Those were the 4 castes. It was there before the independence, but a new caste emerged that was known as patriots. जे थिले मिस्टर महाराणा से भाई गोटे गोष्ठी अंतर्भुक्त थिले एंड सबू आम कहीपर इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज प्राय प्रत्येक गाँव में बिसाइड द ब्राह्मण्स ब्राह्मण को सहित क्षत्रिय वैश्य शूद्र को छाड़ी आउ गोटे कैस्ट था हूँ कौन ए कपल ऑफ पैट्रियोट्स केम इनटू विंग दोज हु ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प द कम्युनिटी दोज हु ट्राइड टू हेल्प द सोसाइटी जो मैंने समाज को साहाय्य करने आगे आसती से भाया गोटे गोष्ठी था पैट्रियोट्स अपार्ट फ्रॉम ब्राह्मण्स क्षत्रियस वैश्यस एंड शूद्रस आम कह रिच मिडिल क्लास पोर से कथा छाड़ दियो ब्राह्मण क्षत्रियस वैश्यस एंड शूद्रस कथा कहुई. इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द स्मॉल फिशरीज ऑफ श्री महाराणा were often exercised in honor of this new people. It was observed that the small fisheries of Sri Maharana were often exercised in honor of those new people, and officers began to notice that Sri Maharana himself was fast becoming a patriot. So it was the responsibility and it was the duty of that patriot known as Mr. Maharana ba Sri Maharana se kon kortule he often welcomed some new guests to his village with his compliments, and in this or during that time the person Minister of Fishery and Fine Arts, the name of the person Babu Birokisar, who was famous, and one day the person Sri Maharana decided to welcome a new guest to his village, and he was none other than Babu Birokisar. So finally it was decided, and observers begin to notice that Sri Maharana himself was fast becoming a patriot, and observes actually the person ke writer Manoj Das was watching from the beginning to Mr. Maharana, who was making a plan to welcome a new guest to his village, and he was the Minister of Fisheries and Fine Arts Babu Birokisar. As a patriot, it was his pleasure to welcome that new guest. Say as a gote patriot भाव से गोटे देशप्रेमी भाव में गोटे नुआ गेस्ट को से वेलकम करने को चाहूँले तांकर विलेज को, एंड इट वाज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वेलकम दैट पर्सन बिकॉज ही वाज नोन एज ए पैट्रियट. से गोटे देशप्रेमी भाव में उभा होते से टाइम. एज आई फाउंड लेटर ही हैड इवन नॉट द एम्बिशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर.
Actually, he wanted to be a member of the state legislature, and that is why he was making all the plans. That is what the person Manoj Das noticed from the beginning. Manoj Das कौन करथिले राइटर जे अछंती हमर प्रोफेसर श्री अरविंद इंटरनेशनल स्कूल यूनिवर्सिटी रे तांकर अनुसार से प्रथम रु ही वाच करुथिले काहाकू बाबू बा महाराणा श्री महाराणा को महाराणा जांकर ना एंड ही हैड हिडन एजेंडा एज आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग मु कहि आसी तांकर गोटे हिडन एजेंडा थिला सेटा होची कोन दैट ही वांटेड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर बा गोटे एमएलए हेबा पई तांकर गोटे लक्ष्य थिला एंड दैट इज व्हाई ही वाज मेकिंग ऑल दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू विन द हार्ट ऑफ द मिनिस्टर बाय व्हिच एंड थ्रू दैट पर्सन ही विल बी एंटर्ड इनटू स्टेट लेजिस्लेटर एज अ मेंबर गोटे मेंबर भाव में होकर से जाई परबे रास्ता तांकर सहज हो जिवो बोली कर से चेष्टा करथले केमती कोन करी सैटिस्फाई करबे काको सेई मंत्री को. सो द प्लान वाज मेड बाय मिस्टर महाराणा. प्लान बनागला टू वेलकम द न्यू गेस्ट इनटू हिज विलेज. सो ए लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन द नेक्स्ट बहुत जिनस तांको करबा को बाकी थिला. सो कौन कले सी द इंसिडेंट आई नाउ रिलेट ऑकवर्ड एट द outset of his endeavor in that direction. That means the process was started to welcome the new guest into his village. Endeavor कहले विभिन्न प्रकार एफर्ट बा तांकर कार्य शैली बा कार्यक्रम. I now then as I told you मनोज दास was watching all that kind of activities. हे सब जिनस को लक्ष्य करछन किए मिस्टर मनोज दास who was just a small boy then during that time जेतोल से गोटे छोटिया बालक होइथांदी in my maternal uncle's house. So plan was made and the process was started by Mr. Maharana to welcome the new guest as per his direction. तांकर डायरेक्शन अनुसार सब कार्य आरंभ हला विलेज रे बा से गाँ रे नुआ गेस्ट को वेलकम करा जिवो. आ से न्यू गेस्ट होचंदी कि मंत्री जे मत्स्य विभाग रो आ फाइन आर्ट्स रो तांको ना होची बाबू वीर किशोर. तांको वेलकम करबा को के चेष्टा करचंती एठी मिस्टर महाराणा जे थिले से गाँ रे गोटे व्यक्ति बा मुख्य व्यक्ति गोटे रेपुटेड लोक थिले. से आई विटनेस दैट इंसिडेंट एज ए स्मॉल बॉय. से देखुले एज ए स्मॉल बॉय जेतोल से छोटो बालक थिले एंड ही वाज देयर इन हिज मैटरनल अंकल्स हाउस. तांकर माने मामू को घर से थिले व्हिच आई फ्रिक्वेंटली विजिटेड बीइंग जस्ट नियर श्री महाराणा. से बेले बेले देखिबा पय जाउतले श्री महाराणा बाबूंकर घर पाखा पाखी. व्हेन आई नरेट इट आई डू सो नेचुरली विथ द अंडरस्टैंडिंग व्हिच हैज मैच्योर्ड इन मी विथ टाइम. धीरे धीरे तांको कौन करथिला मैच्योर करला परे से घटनाटी वर्णना करिसंती हाउ इट हैपेंड बिफोर हिम. तांको सामने घटिथिबा संपर्क घटना संपर्क से एठी उदाहरण दैचंती. इन दोस अर्ली डेज ऑफ स्वदेशी मिनिस्टर्स दे वर नो डेप्यूटी और सब डेप्यूटी मिनिस्टर्स. सेते बेले मिनिस्टर मानकर कोनोसी कैबिनेट मंत्री उपमंत्री एभली केही नथिले. ओनली मिनिस्टर वाज देयर फॉर अ डिपार्टमेंट. गोटे डिपार्टमेंट केवल जणे ही मिनिस्टर रहिथिला एंड इट वाज the duty of that minister to run his department. तार विभाग पई से थिले उत्तरदायी आउ के नथिले तांग पई एंड दे ऑल वर फुल फ्लेज्ड ऑनरेबल मिनिस्टर्स. से माने फुल फ्लेज्ड ऑनरेबल मिनिस्टर्स थिले से माने एंड बाबू वीर किशोर वाज वन ऑफ देम हु हेल्ड द पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो कहले विभाग से तांकर विभाग थिला कोन ए कथा कहैछि हु हेल्ड द पोर्टफोलियोज ऑफ फिशरीज एंड फाइन आर्ट्स. तांको विभाग रे पड़ितला बाबू वीर किशोर को भाग रे पड़ितला फिशरीज एंड फाइन आर्ट्स मत्स्य एवं कला साहित्य जो कथा आम कहूँ फाइन आर्ट्स. हेल्ड फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट एंड अभिवादन ग्रहण करने जाते कौटू तांको डिस्ट्रिक्ट रु कार मनोज दास डिस्ट्रिक्ट रु. द स्पॉन्सर्स ऑफ श्री महाराणा थॉट इट्स प्रॉपर दैट हिज डेब्यू into politics should have the blessings of Babu Viro Kesar. And as I told you that there was a hidden agenda in the mind of the person Mr. Maharana, and why he wanted to welcome a new guest or welcome the minister to into his village. से कौन पाई तांकर मिनिस्टर को वेलकम करिया पाई चाहूतले because there was a hidden agenda. And what was that hidden agenda? He wanted to make his debut into politics, and that is why he planned to welcome the new guest. And that new guest was none other than the minister of fisheries and fine arts. he बाबू वीर किशोर को से वेलकम करिया पई जेतोले तांकर प्लान आरंभ कले से एंड कौन थिला तांकर एजेंडा एक्चुअली से चाहूतले पॉलिटिक्स रे पुरीबा पई. एंड इट कैन बी पॉसिबल और इट कुड बी पॉसिबल थ्रू ओनली द पर्सन बाबू वीर किशोर. बाबू वीर किशोर जोगु ही एटा संभव हो पारिबो सेति से प्लानटी करथिले. सो इन दोज डेज अ मिनिस्टर्स डेली लाइफ वाज लार्जली मेड अप of speech making at public receptions.
So how did the ministers spend their time with the public सहित से किभली रिलेशन रखिथिले that they used to deliver their speech in different public meetings से public meeting रे तांकर भाषण देकर तांकर समय अतिबाहित करुथले as a minister it was their duty to speak before people and to aware them about their departments and their activities and the plan of the government. So that was their duty and they used to deliver their speech before public in different meetings. विभिन्न प्रकार मीटिंग रे समान भाग नेकरी तांकर समय से अतिबाहित करथिले भाषण देकरी. So a reception was arranged for Babu Birokisar with Sri Maharana as the chairman of the reception committee. So it was decided earlier मु तुमको कहितली पूर्वरु जे बाबू बीरकिशोर पई स्वागत करबा स्वागत संवर्धना पई श्री महाराणा प्लान करथिले एंड आफ्टर दैट श्री महाराणा एज द चेयरमैन ऑफ द रिसेप्शन कमिटी ही वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द रिसेप्शन कमिटी टू वेलकम हिज मिनिस्टर. से मिनिस्टर को वेलकम करबा पई गोटे रिसेप्शन अरेंज करा जायतिला आ गोटे भव्य भोजर भी आयोजन करा जायतिला टू वेलकम द न्यू गेस्ट बाबू बीरकिशोर हु वाज द मिनिस्टर जे थिले मंत्री तांको वेलकम करबा पई आरंभ होइतिला एई रिसेप्शन जार चेयरमैन थिले के श्री महाराणा who was from that village, say village ru. Sri Maharana's huge ancestral cane chair was laid with a linen cover open which the best village seamstress had laced a pair of herons with two big fish in their beaks. I will tell you different meanings of those words. Linen कहले किछि गोटे वस्त्र आ गोटे कथा हला seamstress बोली कहले सिलाई करथुवा स्त्री लोको. Actually he gave some orders to women to make something for the new guest who was about to come to his village and who will be welcomed by Mr. Maharana and his companions. Mr. Maharana का द्वारा तांकर सहयोगी मान द्वारा वेलकम होगा जाउथबा न्यू गेस्ट को पई किछि बनेवा पई से स्त्री लोक को कहले जे सिलौतला से गाँ रे एंड सी वाज द बेस्ट से थिला गोटे भलो सिलेबार से सिद्धहस्त थिले से स्त्री लोक सेति पई से ताकू बरात देथिले. So huge ancestral cane chair was laid with a linen cover. तांग पई कोन कोन अरेंज करा जायतिला ancestral पूर्व पुरुषर लागि थिबा गोटे चेयर को अरेंज करा जायतिला चेयर को जोथरे से मिनिस्टर बसिबे आ ता ऊपर किछि गोटे वस्त्र पड़िथिला open which the best village seamstress had laced. So a best village seamstress had laced a pair of herons with two big face माने बगो बगर मुहरे दुईटा माछ थिबो तार थंटरे बैक्स कहले थंटरे ए भलिया गोटे चित्र आंकी थिले सिलेई थिले कि से स्त्री लोक एंड इट वाज ए स्पेशल अरेंजमेंट मेड बाय द पर्सन मिस्टर महाराणा टू वेलकम हिज गेस्ट और वेलकम द मिनिस्टर Babu Birokisar. So we are moving the next line. For a fortnight every day the children of the village lower primary school devoted the afternoon to the practice of the welcome song. So there was another arrangement by the person Mr. Maharana. Actually it was assigned to a school. गोटे स्कूल को दायित्व दिया जाइतिला जे children of that school would practice a welcome song to sing before the guest or to sing before the minister Babu Birokisar. बाबू बीरकिशोर को सामने गीत गाइबा पई 2 सप्ताह धरी प्रैक्टिस करथिले सेही अंचल रो थिबा स्कूल रो पिला माने लोअर प्राइमरी स्कूल रो पिला माने एंड डिवोटेड द आफ्टरनून टू द प्रैक्टिस ऑफ द वेलकम सॉन्ग. आउ प्राय आफ्टरनून रे ए गीतटी प्रैक्टिस होतला टू वेलकम द गेस्ट. Among the many strange phenomena wrought by the great spirit of the time was the composition of this song, and it was too difficult task to compose the song by the composer. It was a difficult task, बहुत कष्टकर काम थिला composer ପାଇଁ गीत compose करिबा to sing before the minister. So the head pandit was assigned, से स्कूल रो head pandit को दायित्व दियतिला who had lived 67 years without any poetic activity, janकर कोनोसी experience नथिला. So the refrain of the song still raises echoes in me, and as I told you, Mr. Manoj Das, who is a professor in the Sri Aurobindo International University Pondicherry, say prathamru when he was just a small kid he was watching Mr. Maharana because Mr. Maharana's house was nearer to his uncle's house. तांकर मामुंकर घर पाखरे थिला तांकर घर आ तांकर एक्टिविटी को लक्ष्य करूथिले किए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस इंसिडेंट. ए घटनार आरंभ रु किए मिस्टर मनोज दास हु इज द राइटर हियर से देखुथिले एंड ही हैज एक्सप्लेन्ड ऑल दैट थिंग्स इन डिटेल बिफोर ऑल द रीडर्स. आम समस्त सामने रे से जिनसटी रखिछन हाउ मच फन इट वाज, केते खुशी माने केते व्यंगात्मक बा केते हास्य रसात्मक थिला से विषय कहछन. सो it was an arrangement. तापर the refrain meaning of refrain होची विरक्त बा विरत रहिबा बा ख्यान्त. The refrain of the song still raises echoes in me, माने
आफ्टर सो मेनी इयर्स ही हैज़ नॉट फॉरगॉटन द सॉन्ग येट ए सॉन्ग टाको एबे भी से भूली पारि नांती एंड इट स्टिल इकोज इन मी तांको कान रे एबे भी से गीतटी बाजुची व्हिच वाज composed to sing before the minister बाबू बीरू किशोर सामने गायब एटा अरेंज कर इट्स लिटरल ट्रांसलेशन वुड बी आर जो लिटरली आक्षरिक अर्थ होची एभली से गीतर ओ माइटी मिनिस्टर ओ मिनिस्टर शक्तिशाली मिनिस्टर टेल अस कहतु आपण कौन कहवा चाहते कहतु हाउ डू यू नाच दिस सॉन्ग एंड ब्रोड यूनिवर्स तुम किभली सेवा करछ आपण किभली सेवा करछंती एते समय धरी एते लंबा एते बड़ पृथ्वी आगो केमती धरिक रखिछंती हाउ डू यू नर्स हाउ डू यू सर्व अस ये कथा कह जाइए से सॉन्ग रे से ये कंपोज करा जाइतला सो द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग कैटलॉग्ड द ग्रेट चेंजेस नेचर एंड ह्यूमैनिटी सो कैटलॉग्ड कहले तालिकाभुक्त होकर थिबा आउ कौन कौन थिला व्हाट मोर इट वाज देयर इन द सॉन्ग व्हिच वाज कंपोज्ड बाय द हेड पंडित ऑफ द स्कूल हेड पंडित को द्वारा कंपोज करा जाइथिबा से सॉन्ग रे कौन थिला द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग कैटलॉग द ग्रेट चेंजेस नेचर एंड ह्यूमैनिटी मनुष्य और प्रकृतिर परिवर्तन विषय कहुई एक्सपीरियंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मिनिस्टर्स कमिंग एंड एक कथा कहुई द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग कैटलॉग द ग्रेट चेंजेस नेचर एंड ह्यूमैनिटी एक्सपीरियंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मिनिस्टर्स कमिंग हाउ द सन ऑलमोस्ट एंड वन मोर थिंग इट वाज देयर इन द सॉन्ग कंपोज्ड टू सिंग बिफोर द मिनिस्टर सामने गीत गाया कौन क्या विषय अधिका कहुई प्रकृति मनुष्य आउ कौन कहला द सन ऑलमोस्ट ब्लास्ट इन रोमांटिक हैप्पीनेस दैट मॉर्निंग से सकाळ कथा कहला जे कौन ब्लास्ट कहले लाल पड़ी जावा केमती सूर्य लाल पड़ी जाउची एंड इट इंडिकेट्स द रोमांटिक हैप्पीनेस ऑफ दैट मॉर्निंग व्हिच वाज देयर इन द सॉन्ग से सॉन्ग भितर ए सब जिनस थिला कंपोज होइकरी नाउ ईच एंड एवरी वर्ड रिसाइटेड अ पार्टिकुलर राग समस्ते गोटे गोटे पक्षी माने कौन करथिले गीत गाउथिले रिसाइटेड माने उच्चारण करथिले पर्टिकुलर राग गोटे स्वर रे एंड विथ व्हाट ईगरनेस एंड थ्रोविंग ऑफ हैट द women folk waited to blow their conch sails when the minister stepped into the village तापरे कौन हैला when the minister stepped into the village there was a warm welcome made and arranged by the person Mr. महाराणा तांको द्वारा ऑर्गेनाइज कर जाइथिला आ से एजी कौन होतला we can mention again the rest of the song catalog the great changes nature and humanity आउ कौन कौन थिला nature and humanity उपरे how they experienced on the occasion of ministers coming आउ से माने किभली मिनिस्टर आगमन रे किभली से माने माने चेंजेस होचन से विषय कहछि हाउ द सन ऑलमोस्ट ब्लास्ट एंड इट इज आल्सो सेड इन दैट सॉन्ग अबाउट द सन केमती सूर्यटी लाल पड़ जाउछि which was indicating or which would indicate the romantic nature of the environment परिवेशर रोमांटिक उपरे कह जाइछिटा हैप्पीनेस दैट मॉर्निंग हाउ ईच एंड एवरी बर्ड रिसाइटेड ए पार्टिकुलर राग से कथा कह जाइछि डिफरेंट बर्ड्स यूज्ड टू सिंग राग एंड विथ व्हाट ईगरनेस एंड थ्रोविंग ऑफ हार्ट that women folk waited to blow their conch sails when the minister stepped into the village जेतेबेले आसिले मिनिस्टर एक्चुअली birds were there and they used to start singing किभली गोटे स्वर से माने गाउतले ए कथा दर्शा जाइतला इन दैट सॉन्ग थ्रू with that eagerness and throbbing कहले स्पंदनशील of heart the women folk waited जगिथिले सब स्त्री लोक माने टू वेलकम द न्यू गेस्ट विथ देयर conch sail होची टू ब्लो द शंख फुंकी कि से माने वेलकम करथिले व्हेन द मिनिस्टर स्टेप्ड इनटू द विलेज जेतेबेले मिनिस्टर आसिक पहुँचले विलेज रे सो इट वाज काइंड ऑफ वे टू वेलकम अ न्यू गेस्ट इनटू द विलेज during that time and which was arranged by Mr. Maharana as a villager and why he welcomed and why did he plan to welcome the new guest or the minister कौन पे से प्लान कले because there was a hidden agenda in the mind of Mr. Maharana that he wanted to enter into politics through बाबू बीरू किशोर को थ्रू से politics रे पुरिया पई चाहतले so in this way they welcomed the minister with the song and what was there in the song I told you कौन थला से song रे I know that nowadays ministers do not enjoy such glory but Manoj Das is telling the story of nowadays बा वर्तमान समय कथा कहिसंती जे किभली मिनिस्टर मानकु सच ग्लोरी रे आउ एभली वेलकम करा जाय नै आउ but it was very different then सेतबेले टिके अलगा थिला that is what he is mentioning here with the rustic children wrangled बोले आर्गुमेंट करुवा बा जुक्ति करुवा बा किछि पचारिया को चाहतबा so with the rustic children wrangled over several questions
କିଛି during that time what they used to do or what was they what were they doing के the children माने कौन करते शिशु माने से माने argument करते with the organizers and they used to ask some questions से माने किसी question पचारते and what does minister eat से माने कौन खाइबे minister कौन खाइबे what does he think what does he drink से कौन पीवे से विषय पचारते does he sleep or not से सुईबे कि नहीं एक कथा पिला माने पचारते organizer does he ever suffer from colic or colds गरम आउ शीत से संभालु थंडा केमती तांकु संभालुचंती कि नहीं सो देयर वर डिफरेंट क्वेश्चंस अरोज इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन अबाउट द मिनिस्टर को देखिबा बा मिनिस्टर को संपर्क रे सब क्वेश्चन पचारथले इन द नेक्स्ट लाइन व्हिच इज श्री महाराणा himself was hectically excited. He was also excited and he was very busy in his schedule and he was preparing all that thing for his minister. तांकर मिनिस्टर ପାଇଁ सब अरेंजमेंट करूथले and he was looking too much busy. He used to sleep for full hour in the afternoon. आ पूर्वरु से बा ये सब जिनसो एक्टिविटी पूर्वरु और वेलकम सेरेमनी पूर्वरु मिस्टर महाराणा कौन करथले सबुदिन मध्याह्न रे सोउथिले से किंतु he used to take rest but he gave up this habit से तांकर ए हैबिट को छाड़ी दिथिले at last 10 days prior to the reception और रिसेप्शन को पाखापाखि 10 दिन है से कौन करते से शोवा अभ्यास छाड़ी देते एंड ही स्पेंड ऑल इट्स टाइम फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द वेलकम सेरेमनी रो अरेंजमेंट ये सब जिनस से छाड़ी देते एंड ही नेवर went to sleep in these 10 days 10 दिन से शोवा को गले ना all his time passed in examining and re-examining details as I told you he spent his time there in the arrangement of the ceremony and that is why he never want to or he never went to टेक रेस्ट आउ से विश्राम नापे गले ना आउ से भाई भाव से समय देते क्या टू अरेंज द सेरेमनी और वेलकम सेरेमनी ऑफ द मिनिस्टर येट ही सीम्ड नर्वसली अनसर्टेन स्टिल ही वाज looking nervous and he was not satisfied with all the arrangements